Good morning. I think the topic that was displayed that was something long because the topic is obviously the Java class. Fine. So okay. Coming to the basics, in the last class we have talked and discussed on some programming languages, and I have told you people that a link will be provided where you need to submit your uh, the task, that whatever you have performed, that task needs to be submitted. And I think you still didn't get that. So the link was created and all the things will be done by today, because of whatever the programming we are going to do in today's class also, you need to upload the whole thing, make a single PDF and upload that into the Google link, right? And the link will be shared by the first half. Okay. I didn't share it right now for this purpose, that for yesterday another link, for today another link, so not like that, a single link for today's program. Okay, so now today we are going to do some programming languages, some programs, more programs. So let us start that particular scenario. Okay, fine. Okay, so today we are going to talk and discuss on some programs. So let me write first the program's name, what programs we are going to discuss today. So we are going to talk and discuss basically four programs today. So first program is to display a Fibonacci series. First one, Java program to display a Fibonacci series, right? Java program to display a Fibonacci series, right? Second, Java program to reverse a number, means suppose any number is given to for the given number, if we need to reverse that particular number, then what it can be. So how what would be the process to do that? Okay, so Java program to reverse a particular number. Third program that we are going to discuss, that the Java program to check if a number is prime or not. Java program to check that whether a number is prime or not. Okay. And lastly, the fourth one, and lastly, the fourth one, that to check whether a number is palindrome or not. So I think this is the last one, that Java program to check a number whether Java program to check whether Java program to check for a palindrome. Okay, so these are the four programs that we are going to do, or we are going to perform today. Okay, so starting from the first one, the things are same, just we have done in the previous classes. Those who are doing in the software, they are doing, they can show and they can get show me the output also, fine. And those who are doing in the copy, make all the things, write the course and all the things in the copy, and at the end by today the link will be shared and you will need to submit it. Okay, actually one more thing, the thing which I will do, that I will share the link in chat box. Okay, I will share the link in today's chat box in the meeting also itself, so that you people can have the link and you people can submit it directly. Fine. So first program, that is Java program to display a Fibonacci series. So in this context, right, so first, anyone tell me what is the Fibonacci series? What is the concept of Fibonacci series? A series of number in which the next number is the sum of previous two numbers. Correct. Exactly. So a Fibonacci series, it is saying that uh, the next term,
it will be the sum of previous two terms. It is the call of Fibonacci series. The Fibonacci series is a series where the next term will be the sum of previous two terms. So if we are actually doing on some particular series term, so that will be displayed by the particular scenario. Fine. So in this context, so do what the thing is, quickly write some particular codes for this particular Fibonacci series. What comes in your mind, that how you can perform the particular series task of Fibonacci series. So suppose I'm giving you a task that write a program in Java to display a Fibonacci series. So how you can do that? So I think it is 10:48. A particular 4 to 5 minutes window is enough for the particular program. And then I will ask any random person to tell me the logic that how you have done that, or what is the scenario, what logic you have written. Tell me so that I can tell, or I can check whether it is correct or not. Okay. So any doubt? सर Yes. फिबोनाची सीरीज को थोड़ा इंग्लिश में समझा सकते हैं क्या? समझा नहीं, फिर से बताओ। मतलब हमको इतना अच्छा समझ में नहीं आया क्योंकि इंग्लिश में वीक है मेरा। ओके, नो इशू। तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ फिर से। जी सर। तो फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि हम लोग मान लीजिए दो नंबर लिए हैं, 0 एंड 1, करेक्ट। तो मान लीजिए वी हैव टेक टू नंबर्स दैट इज 0 एंड 1। तो फिबोनाची सीरीज में ये होता है कि द नेक्स्ट टर्म, इसके बाद का जो टर्म आएगा, दैट इज द एडिशन और द सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म। जो पहला जो टर्म्स होता है उनका एडिशन होके जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा नेक्स्ट टर्म। तो सपोज द फर्स्ट टू टर्म इज 0 एंड 1, राइट। मेरा पहला दो टर्म है 0 एंड 1, सो द थर्ड टर्म, जो मेरा थर्ड टर्म है वो हो जाएगा क्या, 1। दैट इज द एडिशन 0 प्लस ऑफ 0 एंड 1, इन दोनों का एडिशन करके हम लोग को क्या मिला, 1। तो इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो इसके नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा नितरण, 3 होगा सर, 1 प्लस 2। नेक्स्ट 2 प्लस 3 5। तो दैट इज मींस ऐसे चलता है फिबोनाची सीरीज, राइट। तो आपको एक ऐसा Yes. कोड लिखता है जावा में जहां पे हम लोग ये फिबोनाची सीरीज को बना सकते हैं। ओके ओके सर। तो मैं आप Yes, लोग को sir. 4 से 5 मिनट का टाइम देता हूँ। 10:55, अभी 10:50 हुआ है। 10:55 में हम लोग देखेंगे कि कौन सा प्रोग्राम किसने कहाँ तक लिखा है, क्या इशू है, हम लोग उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। ओके।
ओके, तो मैंने चैट बॉक्स पे सबमिशन का लिंक दे दिया है जहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। तो व्हेन द मीटिंग विल बी एंड, बिफोर दैट जस्ट कॉपी दैट लिंक। उससे पहले आप लोग लिंक को कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो आप लोग को लिंक नहीं मिलेगा। मैंने लिंक आप लोग को दे दिया है। ओके, तो प्रोग्राम जो हम लोग बात कर रहे थे फिबोनाची के बारे में, तो किसी जो जिनका भी हो जाएगा वो अपना हैंड रेज कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, सो दैट आई कैन सी। ओके, तो किनका किनका हो गया है अभी तक? ओके, रोशन कुमार डन। ओके फाइन। तो मैं कोई भी एक रैंडम पर्सन से पूछूंगा कि क्या लॉजिक आपने यूज किया है, कि कौन सा लॉजिक आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या क्या लॉजिक पे आप काम कर रहे हैं रिगार्डिंग द फिबोनाची सीरीज। ओके, तो जतिन कुमार, जतिन कुमार, यस सर। तो आपने फिबोनाची का क्या लॉजिक आप बना रहे हैं, क्या हेलो। लॉजिक आप implement कर रहे हैं, ये थोड़ा हम लोग को बताइए। जतिन, आपने फिबोनाची का क्या लॉजिक यूज किया है, थोड़ा हम लोग को बताइए। सर मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है। अब बताइए कि आपने क्या लॉजिक यूज किया है यहाँ पे। सर सबसे पहले तो क्लास फिबोनाची लिए। ओके, उसका लॉजिक बताइए। क्लास छोड़ दीजिए, जो तो बेसिक है, आप लॉजिक बताइए। सर काउंट लिए, इंट काउंट। ओके, फिर इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0, ओके, तो उसके बाद फिर सर n3 इक्वल टू n1 प्लस n2। ओके, उसके बाद फिर सर उसका नीचे में n1 इक्वल टू n2। ओके, उसके बाद फिर सर n2 इक्वल टू n3। ओके, फाइन। तो मतलब क्या है कि मान लीजिए आप लोग ने दो टर्म्स दिए हैं। फाइन, तो मान लीजिए आप लोग ने, मैं आप लोग को लॉजिक बता रहा हूँ जस्ट फॉर द फिबोनाची सीरीज। मान लीजिए आपने कोई भी एक टर्म लिया है, दैट इज n1 इक्वल्स टू 0, n2 इक्वल्स टू 1। फाइन, दो टर्म आप लोग लिए, दैट आर बेसिक टर्म फ्रॉम वेयर वी नीड टू स्टार्ट। ओके, अब क्या करना है, पहले हम लोग को एडिशन करना है इन लोग का, क्योंकि एज पर द लॉजिक ऑफ फिबोनाची सीरीज द थर्ड टर्म विल बी द एडिशन ऑफ प्रीवियस टू टर्म। लॉजिक के हिसाब से जो थर्ड टर्म होगा हम लोग का, दैट इज द एडिशन, मीन सम ऑफ द प्रीवियस टू टर्म, राइट। तो मान लीजिए हम लोग ने n3 एक लिया है, जहां पे क्या कैलकुलेट होगा, दैट इज n1 प्लस n2। तो यहाँ पे हम लोग का दोनों का एडिशन हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोग को फिर से इसको रन करना है, दैट इज द नेक्स्ट टू टर्म। अब जब हम लोग यहाँ पे रन हो जाएगा, नाउ nc हैज द वैल्यू ऑफ 1। nc में हम लोग कौन सा वैल्यू आएगा, दैट इज 1, 0 प्लस 1। फिर हम लोग को स्वैपिंग करना होगा, मीन्स नॉट स्वैपिंग, एक्चुअली द
changing, the value needs to be changed, not like the concept of the swapping. तो जस्ट सिंपल लॉजिक हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, n1 n2 का वैल्यू हम लोग कहाँ पे पुट कर रहे हैं, n1 में, एंड n2 में n3 का वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, n1 इज इक्वल्स टू n2। तो n1 में कौन सा वैल्यू था, पहले 0, और n2 में कौन सा वैल्यू था 1। अभी जब हम लोग चेंज कर देंगे तो n2 में n1 में कौन सा वैल्यू आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1, एंड द नेक्स्ट लाइन इज दैट इज n2 इज इक्वल्स टू n3। तो n3 में कौन सा वैल्यू था 1, और n2 में वैल्यू चेंज हो जाएगा, दैट इज n2 इक्वल्स टू 1। And now again this concept of n3 will run, that is n1 plus n2, where the next value of n3 will be 1 plus 1, that is 2। तो ऐसे हम लोग का जो टर्म है, और ऑब्वियसली द सिनेरियो ये पूरा एक लूप के अंदर चलेगा, दैट इज सम फॉर लूप, व्हाइल लूप, एनी लूप यू कैन चूज। एक फॉर लूप, कोई भी लूप के अंदर इसको चलेगा। कब तक चलेगा, सवाल है अब कब तक चलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एज हम लोग का इनिशियल वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट होगा, दैट इज सम 0 and 1। लेकिन हम लोग कितना तक, फिबोनाची सीरीज तो अपने आप चलता रहेगा ना, क्योंकि ये एक एडिशन होता रहेगा जब तक हम लोग फॉर लूप चलाते रहेंगे। तो लूप कब तक चलाएंगे, so that's where the scenario comes, that is any n number, means we are trying to get some n, means user कब तक अपना फिबोनाची सीरीज को देखना चाहता है। so here a value of n needs, right, suppose any number, ओके। तो सपोज हम लोग कोई भी एक वैल्यू लिए, दैट इज x, एंड दिस x, इस x में कौन सा वैल्यू आएगा, तो हम लोग कब तक ये फिबोनाची सीरीज को रन करना चाहते हैं, फिबोनाची सीरीज हम लोग कब तक देखना चाहते हैं। तो एक जो भी वैल्यू यहाँ पे यूजर डालेगा उस हिसाब से हमारा लूप रन करेगा, और उस वैल्यू तक अप टू दैट पर्पस हम लोग का फिबोनाची सीरीज रन होगा, ओके। तो अभी मैं देखना चाहूंगा कि रोशन कुमार, रोशन आप शायद किसी भी कंपाइलर में कर रहे हैं ना, ऑनलाइन कंपाइलर। Yes, sir. Okay, fine. So do one thing, just let me check, quickly show your screen. I am giving the permission. Okay, you can share your screen. Okay, so you have take in total num the 5, means आपने पहले से ही total num दे के रखे हैं। So try to make it dynamic, don't make it, okay, static. Okay, sir. And I equals to 2, I then equals to total num, okay, fine. ठीक है, okay, you can stop your share screen. ओके, तो आई होप कि आप सबने इसको किया है, हर किसी के प्रोग्राम, हर कोई इस प्रोग्राम को किया है। चैट बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल गया होगा, एक बार चेक कर लीजिए कि द लिंक आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द चैट बॉक्स। उस लिंक पे ही आप लोग को आपका जो टास्क है उसको सबमिट करना होगा, उस लिंक पे ही आप लोग का जो असाइनमेंट है, जो लिंक पे सबमिट करना था, दिस इज द लिंक। यहाँ पे आप लोग को जाके कल का और आज का 2 दिन का पूरा एक सिंगल पीडीएफ बना के उसको डाल देना है, ठीक है। सर एक बार फिर से लिंक शेयर कर दीजिए ना, हम अभी ज्वाइन हुए हैं। ओके, मैंने लिंक फिर से शेयर कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बिफोर द एंड ऑफ द क्लास आई विल टेल, क्लास खत्म होने से पहले आप लोग लिंक को जरूर कॉपी कर लीजिएगा, नहीं तो ये नहीं मिलेगा आपको, ओके। So our next program, coming back to the next program, so first program is done, okay, so the next program is Java program to reverse a number। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कोई भी एक नंबर होगा, एक रैंडम हम लोग कोई भी एक नंबर लेंगे, उस नंबर को हम लोग को रिवर्स करना है। तो जावा प्रोग्राम टू रिवर्स अ नंबर, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल है, हम लोग एक नंबर लिए 1 2 3 4। तो आफ्टर द रिवर्स, आफ्टर यूजिंग द प्रोग्राम, द रिजल्ट विल बी 4 3 2 1, दैट इज द रिजल्ट। तो इनिशियली अगर हम लोग एक नंबर लेते हैं दैट इज 1 2 3 4, तो आफ्टर द प्रोग्राम हम लोग जब प्रोग्राम करेंगे उसके बाद हम लोग का आउटपुट सेक्शन में आना चाहिए द रिजल्ट इज 4 3 2 1।
तो हम लोग कोई भी एक नंबर को रिवर्स करना चाहते हैं, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, राइट? तो क्या लॉजिक आप लोग के दिमाग में आ रहा है, हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं? तो हम लोग इसके लिए आपको 5 मिनट का टाइमिंग विंडो फिर से देंगे। आप लोग खुद से सोचिए, आप लोग ट्राई कीजिए और फिर बताइए, ठीक है ना? देखिए, मैं डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या होगा, मेरा डिस्कशन से मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि ये करना है। तो एज ए प्रोग्रामर, एज अ कंप्यूटर इंजीनियर, यू नीड टू यूज योर ब्रेन। आप लोग को आपका दिमाग यूज करना है, नहीं तो आप लोग कोडिंग नहीं सीखेंगे, राइट? अब आप लोग देखिए, ऑनलाइन क्लासेस है, वर्चुअल चल रहा है, मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, आप लोग कोई भी कहीं पे जाके गूगल पे जाके सर्च करके कुछ भी करके मुझको दिखा सकते हैं, फाइन, नो इशू, आप दिखाइए मुझे, लेकिन इस पे आपका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग सीखेंगे भी कुछ नहीं, राइट? आपको जहाँ पे मिल रहा है कोड, कहीं पे ही मिल जाता है, कोड कॉपी करके दिखा दीजिए, सर को दिखा दिया, हो गया, दैट्स फाइन, नो इशू, सर भी समझ गए, सर को क्या है, सर देख लीजिए। लेकिन आपको कुछ सीखने वाला नहीं है इसमें, तो आपको अगर सीखना है तो आपको खुद से ट्राई करना होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमको सर को दिखाना है कि हाँ सर मैंने कर दिया, दैट इज नॉट द पर्पस। मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, मतलब आपको खुद से करना है, आपको खुद से ये करना है, ना कि कहीं से कॉपी करके। खुद से करेंगे तो आप सीखेंगे, कहीं से कॉपी करके मुझको दिखाएंगे तो उसमें आपका कोई फायदा नहीं है, और मुझको दिखा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग को सिखाने के लिए हूँ, आपका कहीं से कॉपी करके कोड देखने के लिए नहीं हूँ। ओके, आप करेंगे तो दैट इज गुड फॉर यू पीपल, फाइन। तो यूज योर ब्रेन्स, आप लोग अपना दिमाग यूज कीजिए, क्या कर सकते हैं इसमें, कौन सा लॉजिक यूज कर सकते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जिसका हो जाएगा उसके बाद आपका रेज हैंड कर दीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि जो लोग कॉपी में कर रहे हैं वो लोग अपना हैंड रेज नहीं कर सकते, ठीक है ना? कॉपी में कर रहे हैं तो आप लोग हैंड रेज कीजिए कि आपका हो गया, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने लॉजिक क्या यूज किया है। मैं यहाँ पे कोई आउटपुट उसका ही चेक करूँ जिसके पास सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैं लॉजिक हर किसी से पूछ रहा हूँ। तो लॉजिक, आप तो लॉजिक अपना कॉपी में लिखेंगे ना, तो लॉजिक बताइए आप क्या लॉजिक यूज कर रहे हैं, कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जिनका भी हो जाएगा अपना हैंड जरूर रेस कर दीजिएगा, ताकि मुझको पता चले कि आपका हो गया है।
तो किसी का भी अभी तक नहीं हुआ? किसी का हुआ अभी तक? Okay, so let me ask a random person that what he was thinking about this particular program. So I can see Kamrul Ansari. Kamrul Ansari, are you there? यस सर, यस सर। ओके काबुल, तो आप बताइए कि क्या लॉजिक आपके दिमाग पे चल रहा है इसके रिगार्डिंग, इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग, कि हम लोग कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते सर इसमें हम लोग एक रिवर्स वेरिएबल ले सकते हैं जिसको 0 असाइन कर दें हैं? और इसमें व्हाइल लूप लगाना होगा। जो ओके कंडीशन ट्रू होगा, नंबर नॉट इक्वल टू 0। ओके फिर सर इसमें पहला स्टेप होगा, इंट रिमाइंडर लेंगे जो नंबर को 10 मॉड्यूलों से करेंगे डिवाइड। ओके, तो वाई मॉड्यूल, आप मॉड्यूलों क्यों यूज कर रहे हैं? सर ताकि उसको ये मिल सके, नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा सर। हाँ, तो मॉड्यूल क्यों ले मॉड्यूलो रहे हम हैं लोग कब यूज करते हैं? इस मॉड्यूलों के यूज करने का पर्पस क्या है? जब सर उसका रिमाइंडर चाहिए होता है। ओके फाइन, नेक्स्ट। फिर सर उसके बाद हम लोग सर रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स इंटू 10 करेंगे जो कि 0 हो जाएगा प्लस रिमाइंडर। ओके फिर नेक्स्ट स्टेप सर नंबर इक्वल टू नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो डिवाइड करने से हम लोग को क्या मिलेगा? सर उसका ये हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा पूरा नंबर जो भी हम लोग आप देंगे इनपुट। फाइन, तो क्या हम लोग सिर्फ व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं, फॉर लूप यूज नहीं कर सकते यहाँ पे? नहीं सर, फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, ओके तो मैंने व्हाइल लूप लिया ताकि इजी हो, कंडीशन ट्रू होगा हमेशा। ओके फाइन, ओके फाइन। तो आप कॉपी में कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म में? सर सिस्टम में कर रहे लैपटॉप। लैपटॉप में। तो आपका प्रोग्राम रन हुआ है? ये सर के दिखा। ओके, तो मैं आपको शेयर स्क्रीन करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, तो आप शेयर करके दिखाइए कि आपका प्रोग्राम रन हुआ है, क्या हुआ है, तो दिखाइए पूरा। सर दिख रहा, देखिए तो। नहीं, आपको शेयर स्क्रीन पे जाके आपका जो विंडो है उसको शेयर कीजिए। रुकिए सर। यस, अभी दिख रहा है। ओके फाइन, तो आपने क्लास नेम दिया है, कर दिया है आपने। Okay, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। यू कैन स्टॉप योर। ओके फाइन, तो और किसी का हुआ है?
और किसी ने भी प्रोग्राम को कंप्लीट किया है? बाकियों का क्या है? सुषमा, यस सर। प्रोग्राम हुआ है आपका? नहीं सर। प्रॉब्लम क्या आ रहा है? सर मुझे समझ नहीं आया उसका लॉजिक। फिर से बताइए। मुझे समझ नहीं आया सर लॉजिक। लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है आपको? ओके, ओके फाइन, ओके, तो लेट मी इसका हेल्प, रिवर्स का समझ नहीं आया। लेट मी हेल्प। फाइन, तो हम लोग का प्रोग्राम है कि जावा प्रोग्राम टू रिवर्स अ नंबर। ओके, तो हम लोग एक नंबर लिए हैं, दैट इज 1 2 3 4। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, दैट इज 1 2 3 4। हम लोग एक नंबर यहाँ पे लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक वेरिएबल ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ABCD, दैट इज अप टू यू, मेरा कोई इशू नहीं है। तो आप लोग कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए। फाइन, सपोज हम लोग ने एक वेरिएबल लिया है, दैट इज A, और उसको हम लोग काम यूज करेंगे। तो इस वेरिएबल में क्या है, जो नंबर है, हम लोग का जो ओरिजिनल नंबर है, ओके, सो दैट इज आवर ओरिजिनल नंबर इज 1 2 3 4, राइट। अब इस ओरिजिनल नंबर को हम लोग एक व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं, राइट। फर्स्ट तो एक चेकिंग होगा, क्योंकि अगर आपका जो नंबर है अगर ये 0 है, क्या ये रन करेगा, फिर यह लॉजिक या प्रोग्राम काम करेगा? अगर आपका ये नंबर 0 हुआ तो क्या ये लॉजिक काम करेगा, प्रोग्राम रन करेगा, मीन्स कोई रिवर्स आएगा इसका? नहीं सर। नहीं। तो हम लोग को फर्स्ट कंडीशन ये चेक करना है कि नंबर हम लोग का 0 नहीं है, राइट। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे जो भी वेरिएबल लिया है, जहाँ पे आपको ये मेन नंबर 1 2 3 को स्टोर किया गया है, तो उसको पहले कंडीशन चेक होगा कि x नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। मान लीजिए मैंने x वेरिएबल यूज किया है, जहाँ पे हम लोग यूज करेंगे x नॉट इक्वल्स टू 0, ये हम लोग का पहला कंडीशन। तो इसके बाद हम लोग का क्या होगा, चेक करेंगे जो हम लोग का नंबर है उसको हम लोग रिमाइंडर से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 10, मीन्स मॉड्यूलो यूज कर रहे हैं। तो नंबर, तो हम लोग का जो नंबर है मान लीजिए कहाँ पे स्टोर है, x, तो हम लोग क्या कंडीशन यूज कर रहे हैं, x मॉड्यूलो 10। तो x का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, राइट। अगर इसका मॉड्यूलो 10 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट, एनीवन? 4 सर। 4, ऑल आर एग्रीइंग, सबको यही लग रहा है? मैं आप लोग से आंसर मांग रहा हूँ। ओके, तो हम लोग का रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 4, फाइन। तो हम लोग एक एक करके स्टेप कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, हम लोग जहाँ पे भी रिवर्स को स्टोर करना चाहते हैं, कोई कहीं पे भी, ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए को यूज किया है, तो हम लोग का रिवर्स नंबर हुआ होगा, हम लोग को एक वेरिएबल पे स्टोर करना होगा, दैट इज आवर ए। क्या कर रहे हैं हम लोग, लॉजिक यूज कर रहे हैं, दैट इज ए इंटू 10 प्लस वॉट एवर द वैल्यू, और जहाँ पे हम लोग का ये रिमाइंडर पार्ट यूज हुआ है, मान लीजिए हम लोग ने एक वेरिएबल दिया था बी, जहाँ पे हम लोग इस रिमाइंडर को स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो इनिशियली ए नीड्स टू बी असाइन्ड अ वैल्यू एज वी आर यूजिंग हियर, तो मान लीजिए ए इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, 0 इंटू 10 प्लस बी, so what will be the result, the result is 4। 4, 4। करेक्ट, द रिजल्ट इज 4। तो हम लोग का 1 2 3 4 जो नंबर था वहां पे हम लोग फिर यूज करके हम लोग को एक 4 नंबर मिल गया है। फिर कर रहे हैं क्या, हम लोग को इसको छोटा करना है, हम लोग को एक रिवर्स मींस क्या करना होगा, एक्चुअल में क्या है, हम लोग सिंपल लॉजिक यूज करेंगे। तो अगर 1 2 3 4 का लॉजिक है, पहले हम लोग इसको पहले आना होगा, और जब इसको हम लोग निकाल लेंगे, हम लोग को हर एक को अलग से निकालना होगा, यहाँ से हर एक नंबर को अलग से यहाँ से निकालना होगा और इसको रिवर्स करना होगा। तो हम लोग पहले किसको निकाले, 4 को निकाल दिए। तो अभी हम लोग का बच्चा जो है 1 2 3, हम लोग को उस पर वर्क करना होगा। तो उसके लिए हम लोग को ये 1 2 3 को पहले फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज सिंपल, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 10। so what is 1 2 3 4, our value, that is x डिवाइडेड बाई 10। तो रिजल्ट क्या आएगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट,
1 2 3 1 2 3। अभी फिर से लॉजिक वही चलेगा, मीन्स ये व्हाइल लूप के अंदर ये कंडीशन चल रहा है, व्हाइल लूप में अंदर ये कंडीशन तब तक चलेगा जब तक ये लूप मीन्स जो नंबर है जब तक ये पूरा 0 तक नहीं चलता है, राइट। तो हम लोग का फिर से क्या लॉजिक वहीं पे आ जाएगा, दैट इज नाउ 1 2 3। सो नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स इज, और जहीं पे भी है हम लोग का जो नंबर है हम लोग उसको यहीं पे स्टोर कर रहे हैं। सो सपोज द कंडीशन इज x इक्वल्स टू दिस इज द सिनेरियो x डिवाइडेड बाय 10। तो हम लोग का वैल्यू क्या आएगा 1 2 3। नाउ फिर यहाँ पे चलेगा, फिर हम लोग कहाँ पे चलेंगे, इस लाइन पे 1 2 3 मॉड्यूलो बाई 10। तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा सर 3। 3। 3 फिर आएगा सर। वही लॉजिक यहाँ पे चलेगा, अगेन क्या वैल्यू हम लोग को मिलेगा, 3 सर। फिर लॉजिक यहीं पे आ जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा क्या 43। 4 3। 4 इंटू 10 प्लस 3। तो यहाँ पे पहले अभी ए का वैल्यू क्या है 4, तो 4 इंटू 10 प्लस 3 क्या आएगा 43। 43, नॉट 3। तो जिसने 3 बताया दैट इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि अभी इसको यहाँ पे चेंज हो गया। नाउ ए हैव द वैल्यू इज नॉट 0 राइट नाउ, so e is now 4 into 10 plus 3, राइट। तो अभी हम लोग का वैल्यू आ गया 43। फिर से e पे आ जाएगा, दैट इज 1 2 3 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा हम लोग को 12। फिर से यहाँ पे ये लूप तब तक चलेगा जब तक पूरा लूप का वैल्यू कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, 0 हो जाएगा। तो तब तक हम लोग का जाके लास्ट में मिलेगा 4 3 2 1, करेक्ट। एनी इश्यूज? No, sir. Okay, fine. Do one thing, kindly write your names in the chat box for attendance purpose because time is going to end. Okay, so we have completed our program number 2 and program number 3 and 4. जो आप लोग का program number 3 and 4 है ये आप लोग को खुद से करना है, and मैं आपको कल शाम तक का टाइम दूंगा। ओके, आज का और कल का पूरा मिला के आपको आज का 2 प्रोग्राम परफॉर्म करना है। तो कल शाम मीन्स सैटरडे 4 बजे तक का टाइम है, उसके बाद मैं लिंक ऑफ कर दूंगा। सैटरडे 4 बजे के अंदर जो जो सबमिट कर देगा उनका मैं काउंट करूंगा। और वन मोर इन्फॉर्मेशन कि आगे से मीन्स नेक्स्ट वीक से आपका जावा का क्लास नयन सर लेंगे, जो आप लोग का डेटा स्ट्रक्चर लेते थे वो नयन सर लेंगे जावा का क्लास। ओके, पता चल जाएगा क्यों क्या है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आगे से जो भी लिंक थे और नयन सर और टाइमिंग सब कुछ आप लोग को पता चल जाएगा। उस टाइम पे आप लोग को नयन सर के क्लास में ज्वाइन करना होगा फॉर द जावा क्लासेस। ओके फाइन, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? सब पता चल जाएगा, वेट रखो, टाइम विल टेल ऑल द। ओके ओके, सर हम लोग का इंटरनल ऑफलाइन होगा? हाँ यस, कॉलेज में आप लोग आएंगे तो तब ऑफलाइन ही। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन द सेशन। और मैं आप लोग के साथ हर वक्त, आप लोग का कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, नो इशू, फाइन। So I will be there for you people. Okay. Thank you, sir. Okay.